Okay. So understood this one? So y is equal to e to the power sin t into ln t square plus 1. So u into v. So first we'll take the derivative of this one. The derivative of e raised to power sin t. It will become e raised to power sin t into the derivative of the power, that is cos t, into the second function ln t square plus 1, plus the first function e raised to power sin t as it is, into the derivative of the second function. The derivative ln t square will be 1 upon t square into the derivative of t square, that is 2t, plus the derivative of 1 is 0. So 1t is cancelled by t square, only t is left. Now e raised to power sin t is common. So e raised to power sin t is common. Inside will be cos t into ln t square plus 1 plus 2 upon t. This is the final answer. Mohammad Salman Khan, M. Ali Naik, 64094. Ali Naik 6205. Okay. Okay, so this is the answer. Now we'll do the next topic is inverse trigonometrical functions. Inverse trigonometrical functions. If y is equal to derivative of sine inverse x 1 upon root 1 minus x square derivative of cos inverse x minus 1 upon root 1 minus x square derivative of tan inverse x 1 upon 1 plus x square derivative of cot inverse x minus 1 upon 1 plus x square derivative of sec inverse x 1 upon x root x square minus 1 .
derivative of cosec inverse x minus 1 upon x root x square minus 1. These are the 6 inverse trigonometrical functions and their derivatives. The derivative of sin inverse x will be equal to 1 upon under root 1 minus x square. The derivative of cos inverse x will be minus 1 upon under root 1 minus x square. Derivative of tan inverse x is equal to 1 upon 1 plus x square. The derivative of cot inverse x will be equal to minus 1 upon 1 plus x square. The derivative of sec inverse x is equal to 1 upon x into under root x square minus 1. Derivative of cosec inverse x is equal to minus 1 upon x under root x square minus 1. These are the 6 inverse trigonometrical functions. We will use these formulae and we will do the exercise 7.7. Exercise 7.7. Page 531. Page 531. Finding derivatives. Question number 49. Question number 49, exercise 7.7. Y is equal to cos inverse x square Muhammad Hamad 64078. Yes, sir. Here. Okay. Y is equal to cos inverse x square. The derivative of cos inverse x is equal to minus 1 upon under root 1 minus x square. So that means dy upon dx will become minus 1 upon under root 1 minus, for x we have x square,
So it will be square of x square. If it was x, here we took the square of x. There is x square, we take the square of x square into derivative of x square. Into derivative of x square. It will become minus 1 upon under root 1 minus x raised to power 4, and the derivative of x square will be 2x. 2x इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x टू पावर 4. दिस इज द आंसर. dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस 2x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर. तो जो भी फंक्शन है साइन इनवर्स या कॉस इनवर्स का, उसका डेरिवेटिव से भी उसको मल्टीप्लाई किया जाता है. वहां चूंकि x था और x का डेरिवेटिव 1 होता है, इसलिए 1 से हमने मल्टीप्लाई नहीं किया. उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 51. y is equal to sin inverse under root 2t. अंडर रूट 2t. तो t अंडर रूट में नहीं है भाई, देख लीजिए अंडर रूट 2 तक है. इसी तरह लिखना भी है. अंडर रूट टी को जल्दी में इस तरह लापरवाही से नहीं लिखना कि टी भी अंडर रूट के अंदर आ जाए. केयरफुली लिखा करें हर चीज को, पता ही नहीं चलता आपका पावर है या वो मल्टीप्लाई हो रहा है नंबर. इस तरह लिखते हैं आप. पावर को पावर की जगह पर ऊपर होना चाहिए, यानी कि पावर ऊपर से नीचे आ जाए. एक्स प्लस वाई ई रेस टू पावर एक्स प्लस वाई है तो ई रेस टू पावर एक्स और प्लस वाई नीचे ले आए. इस तरह नहीं लिखा करें, गलत हो जाता है आपके क्वेश्चन. ओके, सो डी वाई अपॉन डी टी साइन इनवर्स का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस द फंक्शन है अंडर रूट 2 टी इसका स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन. इसका डेरिवेटिव इट विल बिकम 1 अपॉन रूट 1 माइनस रूट 2 का 2 आ जाएगा और टी का स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाएगा. तो टी रूट के बाहर था इसलिए इसका स्क्वायर 2 हो जाएगा. इसके पे रूट 2 पर भी स्क्वायर होगा तो रूट से 2 कैंसिल हो जाएगा इनटू द डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट 2t. तो अंडर रूट 2 कांस्टेंट है और t का डेरिवेटिव 1 होता है, तो अंडर रूट 2 इसका डेरिवेटिव आ गया. मल्टीप्लाई कर दे 1 से, अंडर रूट 2 अपॉन रूट 1 माइनस 2t स्क्वायर. दिस इज द आंसर. रूट 2 अपॉन 1 माइनस रूट t 1 माइनस 2t स्क्वायर. अंडरस्टूड.
The next question, 53. Y is equal to sec inverse under root sec inverse 2x plus 1. dy upon dx sec inverse 1 upon x under root x square plus 1. 1 upon x की जगह पर हमारे पास 2x plus 1 है, ब्रैकेट में लिखेंगे। जब एक से कोई भी एक्सप्रेशन एक से ज्यादा टर्म पर होगी उसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे, जब उसको किसी और चीज से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इनटू ये एक्स की जगह पर आ गया भाई, इनटू एक्स स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर ले लेंगे 2x plus 1 का स्क्वायर और फिर -1। ये तो हो गया ये फार्मूला। अब इसके डेरिवेटिव से भी इसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाइड बाय द डेरिवेटिव ऑफ 2x plus 1। ओके, 1 अपॉन 2x plus 1 इंटू, इसमें हम u प्लस v का फार्मूला लगा के इसको हम ओपन कर सकते हैं। वो क्या होगा, 2x plus 1 होल स्क्वायर, सो 2x का स्क्वायर विल बी 4x स्क्वायर प्लस 2 times into 2x into 1, so 2 into 2x will be 4x, 4x into 1 will be 4x प्लस 1 का स्क्वायर 1 और फिर -1 मल्टीप्लाइड बाई द डेरिवेटिव ऑफ 2x plus 1 का क्या हो जाएगा 2 plus 0, 2x का डेरिवेटिव 2 और 1 का डेरिवेटिव 0, सो 2 plus 0 will be 2, तो ये 2 आ जाएगा यहां पर, 2 into 1 will be 2 अपॉन ये एज इट इज लिखा जाएगा 2x plus 1 इंटू ये +1 -1 कैंसिल हो गया, ये हो गया 4x स्क्वायर प्लस 4x। इसमें से अगर मैं 4 कॉमन ले लूं तो बाहर आकर 2 हो जाएगा, वो 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। इसमें से अगर 4 कॉमन ले लूं तो 4 जब बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा अंडर रूट, तो ये 2 आ जाएगा, ये है 2 अपॉन 2x plus 1 इंटू, इसमें से 4 कॉमन आया तो बाहर 2 हो जाएगा, ये अंदर बच जाएगा x स्क्वायर प्लस x और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास ऊपर बच गया 1 अपॉन 2x plus 1 और इन द ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस x। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया, 1 अपॉन इन द ब्रैकेट 2x plus 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, होल अंडर रूट है भाई, याद रखें। इसमें से x कॉमन लेने से कोई फायदा नहीं होगा,
क्योंकि अगर एक्स कॉमन लेंगे वो बाहर तो आ नहीं सकता, एक्स स्क्वायर होता कॉमन तो बाहर आकर एक्स हो जाता। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। 7 So this is the answer, 1 upon 2x plus 1 into under root x square plus x. This is the answer. समझ में आ गया बेटा ये बात, ये क्वेश्चन समझ में आ गया? ओके, that was question number 53. नहीं, ये 55 53 था बेटा। यस, क्वेश्चन नंबर 55, y is equal to cosec inverse x square plus 1. Question number 55. X square plus 1 dy upon dx minus 1 upon cosec inverse minus 1 upon x into x square minus 1. ये x है तो यहाँ x होगा, या कुछ और होगा तो वहां वही चीज होगी। तो ये x स्क्वायर प्लस 1 है तो x स्क्वायर प्लस 1 लिखेंगे इन द ब्रैकेट, इसका स्क्वायर कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस 1 इनटू द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1. It will become minus 1 upon x square plus 1 into, इसमें फार्मूला लगा देंगे x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, it will become x raised to power 4 plus 2x square plus 1 और ये minus 1 multiplied by इसका डेरिवेटिव 2x plus 0. So 2x plus 0 will be 2x, 2x minus 1 से मल्टीप्लाई होगा minus 2x upon x square plus 1 into
ये +1 -1 कैंसिल, इट इज x4 + 2x². दिस इज द आंसर. ये कोई चीज कैंसिल हो नहीं रही. दिस इज द फाइनल आंसर. y is equal to cos inverse x² + 1. Sorry, cosec inverse x² + 1. So derivative will become -1 upon x² + 1 into under root x² + 1 whole square -1. So x² + 1 whole square will be x4 + 2x² + 1 and -1 into x² + 1 क्या हो जाएगा? Derivative of x² + 1 will be 2x plus 0. So -1 into 2x will be -2x upon in the bracket x² + 1 and in the root x4 + 2x². This is the answer. इसमें से x² कॉमन लेकर हम कैंसिल कर सकते हैं. यस, x² इसमें से कॉमन ले तो बाहर आकर x हो जाएगा. इसमें से x² कॉमन लिया तो बाहर आकर x हो गया. तो x² कॉमन लिया तो यहाँ x² बच गया, यहाँ 2 बच गया और ये x जो इस x से कैंसिल हो गया. सो हमारे पास आंसर हो गया -2 अपॉन x² + 1 into x² + 2. This is the answer. समझ में आ रहा है बेटा? कोई चीज पूछनी है तो पूछ लें आप. नहीं पूछना? सर क्लियर है. ओके. क्वेश्चन नंबर 59. क्वेश्चन नंबर 59 बल्कि 60 कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 60. y is equal to cot inverse under root t minus 1. Derivative dy upon dx, sorry, dy upon dt cot inverse -1 upon 1 plus x². ये x², x की जगह हमारे पास है अंडर रूट टी -1, तो अंडर रूट टी -1 का स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ with respect to t of under root t minus 1. ये सिंप्लीफाई -1 अपॉन 1 प्लस ये अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, t -1 बच गया. अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया और सिर्फ t -1 बच गया. और इसका डेरिवेटिव ये अंडर रूट t -1 का मतलब है t रेज़ टू पावर t -1 रेज़ टू पावर 1/2. तो इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं अंडर रूट t -1. शफीक अहमद,
So under root t minus 1 will be t minus 1 whole raised to power 1 over 2. इसको मैं अंडर रूट को खत्म करके पावर 1 over 2 कर अंडर रूट t minus 1 means t minus 1 whole raised to power 1 over 2. 1 over 2 लिखेंगे, इसका डेरिवेटिव कैसे लेते हैं हम? इसका डेरिवेटिव 1 over 2 इंटू t minus 1 रेज टू पावर 1 over 2 minus 1, एक पावर कम कर देते, फिर इसका t minus 1 का डेरिवेटिव, ये सिर्फ पावर हमने यहां लिखी, पावर ले लिया, जो कुछ पावर के अंदर था उसका डेरिवेटिव। अब ये देखिए 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये बच गया -1 अपॉन ये 1 over 2 से t से ये t बच गया इंटू 1 over 2 इंटू t minus 1 रेज टू पावर -1 over 2, और t minus 1 का डेरिवेटिव 1 minus 0, t का डेरिवेटिव 1, 1 का डेरिवेटिव 0। सो 1 minus 0 विल बी 1, 1 से किसी को मल्टीप्लाई करें तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, ये 1 -1 इंटू 1 इंटू 1, सो -1 रहा अपॉन ये 2t, और ये पावर नीचे चली जाएगी -1 अपॉन 2, तो +1 अपॉन 2 का मतलब अंडर रूट t minus 1। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया, -1 अपॉन 2t अंडर रूट t minus 1, -1 अपॉन 2t अंडर रूट t minus 1। This is the answer, dy upon dt. This is the answer, -1 upon 2t under root t minus 1. This is the answer. समझ में आ गया बेटा? ये हमने कॉट का किया। अब हम 10 का कोई कर लेते हैं क्वेश्चन। उसके बाद हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 61, 10 का है क्वेश्चन नंबर 61, वो 10 का क्वेश्चन है। उमर अब्दुल्ला एंड देन सैयद शहीर अली 64291। One, 2, 3. Okay. Question number 61. Y is equal to ln tan inverse x. Y is equal to ln tan inverse x. Question number 61. So dy upon dx will be equal to ln का क्या होता है 1 upon tan inverse x into derivative of tan inverse x. It will become 1 upon tan inverse x, और डेरिवेटिव ऑफ tan inverse x क्या होगा 1 upon 1 plus x square,
1/1 + x²। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया, 1 × 1 विल बी 1 अपॉन, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो अलजेब्रिक फंक्शन पहले लिखते हैं, 1 + x² इंटू tan इनवर्स x। दिस इज द आंसर। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? समझ में आ गया बेटा सबके? ओके। सो एक हमने 10 का भी कर लिया। तो ln था तो 1/tan इनवर्स x हो गया, फिर tan इनवर्स x के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई किया, दैट इज 1/1 + x²। और जिस तरह सिंपल x ना होता 3x होता, तो 1/1 + 3x का होल स्क्वायर इनटू द डेरिवेटिव ऑफ 3x।